Good morning students. Today we will talk about second practical of IQC, and that is P bar chart. P bar chart is a fraction defective chart and it is under the category of attribute chart. It is known as attribute chart in which we don't measure the dimension directly. We just measure that we judge the product that it is defective or non-defective, acceptable or non-acceptable. We are not going to measure the all dimensions of the job every time. We just say it is okay or not okay. On which basis we say this thing? For example, take the welding job from workshop. In welding job, what are the various defects? Cutouts, blow off holes. So we will judge how many blow holes are there in the welding jobs or casting job. Similarly, in a typing page from computer, how many mistakes on a single page? For example, there are 200 words on a single page, and out of that 200 words are 10 have spelling mistakes. So this we will say that 10 words are incorrect. Similarly, in engineering, we judge the product by okay or not okay, acceptable or non acceptable, without measuring the dimensions. Without measuring dimensions, kaise, how it will happen? For that we have some standard tools. For example, we want to check the diameter of hole. For example, we want to check the diameter of hole. Then we will have some gauge. One side of the gauge will go into the hole, that is go side, and another side is no go, that will not go in the hole. So go and no go, it will differentiate between the defective or non defective. अगर वो गेज होल में जा रहा है, ओके भी हो सकता है, रिजेक्टेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशंस. गो गेज एंड नो गो गेज विच help us to determine that this piece is defective or not defective. We are not going to in the details. For example, we are taking a cloth and in cloth we spot some defects. So we can say that in 1 meter there are 4 defects, 5 defects. So this type of chart which is not depending upon direct measurement is known as attribute chart. P bar chart, fraction defective chart, is a non fraction attribute chart where we don't measure the dimensions. And how the chart will help us? चार्ट से बेटे हमें आइडिया मिल जाता है कि बेटे प्रोडक्शन बंद कर दो, एरर ज़्यादा हो रहे हैं, एरर ज़्यादा आ रहे हैं, वी विल स्टॉप द प्रोडक्शन, चेंज द रॉ मटेरियल, चेंज द मशीन टूल, शार्प योर टूल. कोई एक्टिविटी, कई रिएक्शन हमें करनी पड़ती हैं. तो एट ये चार्ट से एक्स बार चार्ट हो, आर चार्ट हो, पी चार्ट हो, तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्शन को कब रोकना है, कब हमें उसका सोल्यूशन निकालना है. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन और एंड में जाके पता चलेगा ऑल द लॉट इज रिजेक्टेड. तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, वेस्टेज ऑफ टाइम है. तो ये एट्रीब्यूट चार्ट और एनी चार्ट विल स्टॉप द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल. पी चार्ट, फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट. इसके लिए बेटे फॉर एग्जांपल हमने वर्कशॉप से कोई भी पीस उठा लिया 50-100, पर इसमें जो है इन दिस पी चार्ट सैंपल कैन बी फिक्स. लास्ट टाइम बेटे हमने सैंपल साइज क्या लिया था 5, तो इस बार बेटे हम सैंपल साइज हमारा फिक्स नहीं है. पी बार चार्ट में सैंपल साइज फिक्स भी हो सकता है, आइदर इट इज फिक्स और वेरिएबल. तो पी बार चार्ट में वी आर टेकिंग वेरिएबल samples. Sometimes we take 40 pieces, sometimes we take 45 pieces, sometimes 36 pieces, whatever, randomly, and we check out of this 40 how many are defectives. 4 are defectives, 5 are defectives. Yeah, we can understand it in different form. For example, every hour there is production. हर घंटे बेटे काम
2-2 शिफ्ट में भी काम होता है, तो 16 घंटे की शिफ्ट होगी, तो मैं आपको 16 रीडिंग दूंगा, 8-8 घंटे की 2 शिफ्टें। एक घंटे में मान लो 500 लॉट बना, पर हमने 500 पीसेस चेक नहीं करने, वी विल चेक ओनली रैंडमली। हमने कोई भी ग्रुप ले लेना है, 40 नंबर का, 42 नंबर का, 40 नंबर का, वट एवर भी, और उस 40 और 42 को बेटा हमने ग्रुप नंबर 1 मान लेना है, सैंपल नंबर 1 मान लेना है, और उसमें से अपने डिफेक्टिव पीसेस हमने काउंट करने हैं कि इसमें डिफेक्टिव पीसेस कितने हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर पी बार चार्ट। अब नेक्स्ट में मैं बेटे आपको समझाऊंगा कि हाउ विल प्रोसीड विद द रीडिंग्स। थैंक यू। टू प्रिपेयर द पी बार चार्ट वी विल start with the observation table. Observation table, first of all, in which hour we are inspecting, first hour, second hour, third hour, fourth hour, it is the hour of production. एक घंटे की प्रोडक्शन में बेटे कितने पीस बने, हजारों पीस बनने हैं, बट we had inspected number of units inspected, number of defective units defective। बेटे पहले घंटे में लेट्स से वी हैड चेक्ड 48 सैंपल्स, और इस 48 में से बेटे 5 पीसेस आर रिजेक्टेड, 5 पीसेस आर डिफेक्टिव, इट्स मीन 43 पीसेस आर ओके एंड 5 पीसेस डिफेक्टिव। सेकेंड आवर में बेटे हमने क्या ले लिया, 37 पीसेस ले लिए, 37 पीसेस हमने पिक किया, और उसमें से हमने देखा 4 पीसेस डिफेक्टिव है। तो ऐसे बेटे हमने रैंडमली ये चलते रहना है, और इसमें आपका जो भी है 50 में से फिर उसने, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपके डिफेक्टिव पीस 0 आए, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं बेटे, तो ये आपका चलता रहेगा। 42 पीसेस लिए, 3 पीसेस रिजेक्टेड आ गए। तो ऐसे आपने बेटे ये 16 घंटे का डाटा पूरा करना है, 4 से लेके 16 घंटे का डाटा आपने पूरा करना है। और 16 घंटे में लेट्स से टोटल नंबर ऑफ पीसेस इंस्पेक्टेड आपका हो गया, मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटे, एज्यूम, आपने तो जो भी एक्चुअल में लेना है वो, लेट्स से इट इज 720 पीसेस आ रहे हैं बेटे नंबर ऑफ पीस में जो इंस्पेक्ट हमने किए हैं इंस्पेक्शन में। और नंबर ऑफ टोटल डिफेक्टिव आइटम्स कितनी आ रही है बेटे, सम ऑफ ऑल द डिफेक्टिव आइटम्स, लेट्स से ये बेटे मैं आपको एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम द टोटल नंबर इज 36। इसके बाद व्हाट अबाउट फ्रैक्शन डिफेक्टिव, फ्रैक्शन डिफेक्टिव आपने बेटे कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन डिफेक्टिव मीन रेशियो ऑफ डिफेक्टिव डिवाइड बाय 48, 5 बाय, दिस इज द फ्रैक्शन डिफेक्टिव ऑफ द सैंपल नंबर 1। फ्रैक्शन डिफेक्टिव फॉर सैंपल नंबर 2, बेटे आपको 5/48 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली बेटे यहाँ पे आपने वैल्यू लिख देनी है जो भी आ रही है, 5/48 जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। ऐसे ही 4/37 0। तो फ्रैक्शन डिफेक्टिव आपका चलता रहेगा। ये हमारा सैंपल नंबर 1 का फ्रैक्शन डिफेक्टिव आ रहा है, सैंपल नंबर 2 का फ्रैक्शन डिफेक्टिव यहाँ पे आएगा, सैंपल नंबर 3 का, ऐसे बेटे 16 का आएगा, ये चलता रहेगा आपका। इसके बाद सैंपल साइज, क्योंकि बेटे यहाँ पे वेरिएबल है, आपने अपनी चॉइस से बेटे आप कुछ भी डाटा ले लेना नहीं है, या मैं आपको एक डाटा भेज भी दूंगा, वो डिपेंड करेगा जैसे आपकी इच्छा हो। आपने 16 डाटा यहाँ पे फिल कर देने हैं, और ऐसे ही अपनी चॉइस से 2, 4, 5, 6 के बीच में यहाँ पे डिफेक्टिव लिख देने हैं। और लेट्स से इसका हमने टोटल निकाल लिया बेटे, ये तो नंबर ऑफ टोटल पीसेस कितने हमारे पास, टोटल इंस्पेक्शन कितनी करी, तो सैंपल साइज कितना हुआ, 16 पीसेस से बेटे हमारे 720 पीसेस निकले हैं। 16 इंस्पेक्शन या 16 सैंपल का जो टोटल है वो 720 पीस है। तो एवरेज क्या आ गया बेटे, एवरेज सैंपल साइज क्या होगा, 720 डिवाइड बाई 16, तो ये 45 हमारा जो है एवरेज सैंपल साइज आया। ये हम फिक्स भी ले सकते हैं बेटे, पर ये मैं आपको एक वेरिएबल
ग्रुप का एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसमें हमने फिक्स नहीं रखना, वेरिएबल ही लेना है। तो n आपका ये आ गया बेटे। उसके बाद एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या आएगा बेटे? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। बेटे ये जरूरी नहीं है 36 आए, आपका जो भी टोटल आएगा वो आपने ले लेना है, और जितने भी आपके पीस आएंगे उसका टोटल आपने यहां पे ले लेना है। टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो बेटे ये इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है? 36/720। तो बेटे ये हमारा आ जाएगा 0.05। दिस इज द पी बार। अब पी बार चार्ट के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटे? ग्राफ पेपर पे बनाना, ड्रा करना। तो एक्स एक्सिस पे बेटे आप क्या रखोगे? नंबर ऑफ आवर्स, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अप टू 16 घंटे के बेटे एक्स एक्सिस पे ले लेना। और जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव वी विल टेक ऑन द वाई एक्सिस। सबसे पहले पी बार जो आया 0.05, तो 0.05 बेटे हमने यहां पे लगा दिया 0.05। दिस इज आवर पी बार, एवरेज फ्रैक्शन डिफेक्टिव जो हमारा आया। अब बेटे अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला आपने नोट किया ही हुआ है। अपर कंट्रोल लिमिट इज पी बार प्लस 3 पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाई एवरेज सैंपल साइज होल अंडर रूट। और व्हाट अबाउट लोअर कंट्रोल लिमिट? पी बार माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ पी माइनस 1 माइनस पी बार। इसका बेटे अंडर रूट लेना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको अंडर रूट लेना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपका आंसर आएगा अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू जहाँ भी आए आपने वहाँ पे लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू लिख देनी है। और हर पॉइंट को बेटे आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑर्डर का फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। ये वाला पॉइंट बेटे कहाँ पे है? 0.05। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 0.04। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.03। ऐसे ही बेटे ये 0 से शुरू कर देंगे और ये ऊपर वाला चलता रहेगा जहाँ तक 0.08, 9 जो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बीच में हमने पॉइंट अपने लोकेट करते रहने हैं बेटे। 4th नंबर का, 5 नंबर का हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा हो, 6 का, किसी का 0 भी आ सकता है। तो ये बेटे सारे पॉइंट्स हमारे आते रहेंगे और ये हमारा पी बार चार्ट बन जाएगा बेटे। और फाइनल शेप आपको दिखाने के लिए मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ जो लास्ट टाइम के बच्चों ने बनाया है। इससे आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा कि फाइनल शेप मेरे ग्राफ की कैसी आनी चाहिए। फाइनल शेप जो हमारे ग्राफ की आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली पी बार चार्ट की ऐसी आएगी बेटा। पी बार चार्ट एवरेज 16 घंटे के बेटे यहाँ पे आपका डाटा आ रहा है और ये हर आवर ये फ्रैक्शन डिफेक्टिव हर सैंपल साइज के हिसाब से आपने लेते रहना है और हर पॉइंट को सीरियल कॉन्टिन्यूशन में 1 वाले को सेकंड से, सेकंड वाले को थर्ड से, थर्ड वाले को फोर्थ से, फोर्थ वाले को फिफ्थ से अपने मैच कर देना है। और ये हमारा पी चार्ट का जो भी बेटे इसके यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, पी चार्ट, तो ये पी चार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल बेटे आज कंप्लीट हो गया है। दिस इज पी चार्ट, फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट फॉर वेरिएबल ग्रुप। ये वेरिएबल ग्रुप का मतलब बेटे यही है कि इसमें आपने ये जो हमारा सैंपल साइज है वो फिक्स नहीं है और नंबर ऑफ डिफेक्टिव तो हमें नोट करना ही पड़ेगा कि कितने आए हैं चेक करने पे। तो ये हमारा दैट्स ऑल अबाउट पी चार्ट प्रैक्टिकल। थैंक यू।